Thank you so much, Dr. Usman, for joining us. Today we have with us Dr. Syed Usman Hamdani, the founding director of Global Institute of Human Development at Shifa Tameer-e-Millat University. Dr. Hamdani brings extensive experience of leading many successful international research grants, conducting cutting-edge trial of psychosocial interventions in global mental health research, publications in highest impact vector journals, and creating policy impact in low resource settings. Currently, he is the research lead in mental health team at Wellcome Trust, where he designs and leads the implementation of global mental health research funding calls. Over to you, Dr. Hamdani. Thank you so much, Dr. Vakas. It's a privilege indeed to be talking to the faculty of STMU today about this topic, which is very important and is very close to my heart. And before I go into the details of it, I see that uh, we have about 7 participants, which means it's a smaller group. So I think I'll want to make it more interactive. So can we also have introductions from the attendees so that I know कि कौन लोग हैं? Very briefly, if you can share your motivation for joining today, or क्या आप what are the things that you would want to take away from the lecture so that we make it more bespoke and specific to your needs. So we can start with Dr. Anila Rahman. Assalamu alaikum, sir. Walaikum Assalam. I'm Dr. Anila. I'm an MBBS doctor and I've done my master's in public health from Al Shifa School of Public Health. Right now, I'm working as a lecturer in the Department of Community Medicine at Foundation University Medical College. And my purpose of joining this webinar was to learn how to write successfully proposals for grant, because this is what we are basically trying to do in our domain, in our department as well, to get grants from national and international organizations to conduct researches in our domain. So that's Thank you so much. So you are a lecturer at Foundation University. Yes, sir. Perfect. Great. Thank you for joining. Thank you. Dr. Asmara Malik. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. My name is Dr. Islamabad Malik. I did my MBBS from Shifa College of Medicine, and then I did my MPhil in Community Medicine from Army Medical College. I'm also working as a demonstrator here in Fauji Foundation University Medical College, which is a part of Fauji Group. And I'm also interested in learning about grant writing, because I think, inshallah, when I pursue my PhD, that is going to be an essential skill that I would need. And I hope that will make me a very competitive applicant when I start applying for PhDs, inshallah. Zabardast. Dr. Bushra Noreen. Assalamu alaikum. I'm Dr. Bushra Noreen. I am from Shifa College of Pharmaceutical Sciences, here working as an assistant professor from Department of Pharmaceutical Chemistry. जबरदस्त और आपका आज क्या इंटरेस्ट है, क्या की टेकअवेज हैं that you want to take away? यही कि although पहले से भी आइडिया है, but I want to polish my skills कि इस environment में, क्योंकि पहले मैं PhD मेरी मलेशिया से है, तो वहाँ पर भी मैं अटेंड करती रही हूँ, लेकिन विद रेफरेंस टू अब पाकिस्तान में किस तरह से यहाँ पर क्या है, कोई चेंज है ग्रांट एप्लीकेशन के लिए या कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया है, तो आई वांट टू नो दैट. जबरदस्त. और डॉक्टर सबा आसिम. Assalamu alaikum. I'm Sabah Asim. I am a senior lecturer in Shifa College of Nursing. I want to attend this lecture because in future I want to get admission in PhD and also for the higher researches. Therefore, I'm attending this lecture. Thank you so much. जबरदस्त. तो in sort of giving my brief introduction, so पहले तो सबसे ये कि जैसे डॉक्टर वकास ने बताया कि मैं वेलकम ट्रस्ट में रिसर्च लीड हूँ मेंटल हेल्थ का, और उससे पहले GHT-STMU जो कि ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है शिफा तामीर-ए-मिल्लत यूनिवर्सिटी का. आई फाउंडेड दैट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ देयर. तो जो भी मैं आपको इनसाइट्स दे रहा हूँ, ये कोई वेलकम ट्रस्ट या GHT-STMU की कोई पॉलिसी नहीं है,
ये मेरे अपने रिफ्लेक्शंस हैं और की इंसाइट्स हैं जो मैं एज कोलीग्स आपसे शेयर कर रहा हूँ कि व्हाट आर माय इंसाइट्स एंड इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू मे वांट टू फोकस ऑन। दूसरी चीज़ ये कि आई विल बी टॉकिंग अबाउट कम्पिटिटिव रिसर्च ग्रांट्स का। मैंने इसमें कम्पिटिटिव वर्ड इसलिए ऐड किए कि ये जो प्रोसेस है ना ये इंतहाई कम्पिटिटिव होता है। सो ग्रांट प्रपोजल तो हम एज अ अंडर ग्रेड मेडिकल स्टूडेंट भी लिखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसको कम्पिटिटिव बनाना इज द मेन थिंग। सो आई विल बी फोकसिंग ऑन दिस। और आप लोगों ने खुद भी अपनी इंट्रोडक्शंस में हाईलाइट किया है कि यू नो इट, you have been familiar with this, but you want to make it more competitive. And because we are a very small group today, so I can take your questions and comments along the way. तो कहीं पे भी जिन भी slides पे आपके questions हो, we can make it very interactive. So this is the Global Institute of Human Development, which is a research-led self-sustainable constituent unit of Faculty of Health Sciences at Shifa Tameer-e-Millat University. इसको हमने जो located है, this is located on GT Road, near Rawat, Gujar Khan, Rawat और गुजर खान के दरमियान. And one of the reasons of situating it there in that setting was कि जब हम पब्लिक हेल्थ रिसर्च की बात करते हैं तो जो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी है तो वो एक्चुअली आपकी कम्युनिटी ही होती है। और अनलेस यू हैव अ public health laboratory which is based in a community which is representative of the Pakistani context and settings, तब तक आप you can't make the best impact. तो यहाँ से I did randomized control trials of different interventions, और ये पूरी तहसील है जिसके अंदर तकरीबन 36 यूनियन काउंसिल्स हैं। और हर यूनियन काउंसिल की आबादी जैसा आपको पता है कि 20,000 से 50,000 तक के दरमियान होती है। तो वी यूज टू यूज दीज यूनियन काउंसिल्स एज अ यूनिट ऑफ रेंडमाइजेशन। और फिर हम एक पूरी तहसील के लेवल पे जिसकी कुल आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब बन जाती है, हम इंटरवेंशंस इम्प्लीमेंट करते हैं, एवेलुएट करते हैं और उनको पब्लिश करते हैं। सो दिस इज टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि जो चीज़ें मैं शेयर करूंगा, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव डन इन पाकिस्तान, they come from this context. And this is a very important graph that I think will all help you because आप सारे public health के background से हैं। ये लांसेट ग्लोबल मेंटल हेल्थ कमीशन का 2018 का ग्राफ है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि अलोंग द एक्स एक्सिस ये कहते हैं कि लाइफ कोर्स है, और अलोंग द वाई एक्सिस आप देख सकते हैं कि मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट है। नाउ फ्रॉम अ पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव ये ग्राफ ये बताता है, समराइज करता है इस एविडेंस को कि अगर आपने पॉपुलेशन की मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना है तो व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल टाइम पीरियड। एंड एज यू कैन सी अलोंग द एक्स एक्सिस के प्री कंसेप्शन, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल, इन्फेंसी, स्कूल एज और एडोलेसेंस, यहाँ पे आके इन्होंने इस ग्राफ को ख़त्म कर दिया है। यानी अगर आप पॉपुलेशन की मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना चाहते हैं तो यू नीड टू बिगिन एट अ प्री कंसेप्शन पीरियड. The next important period is a perinatal and postnatal period. Then is the infancy, school age, and youth and adolescence. And इसी लेवल पे अगर रिस्क फैक्टर्स होंगे तो आप देखें कि दैट इंडिकेट्स दिस पुअर मेंटल हेल्थ, द रेड लाइन। अगर इसी पे ही रिस्क फैक्टर्स थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, एट रिस्क पॉपुलेशन हो जाती है, और अगर आप इसी पे उन तमाम रिस्क फैक्टर्स को एड्रेस करते हैं तो दिस लीड्स टू मेंटली हेल्दी पॉपुलेशन। सो आई थिंक ये एक बड़ा अहम पब्लिक हेल्थ परस्पेक्टिव से है। ये 2018 में पब्लिश हुआ, लेकिन द वर्क दैट आई हैड बीन डूइंग इन पाकिस्तान, it actually addressed all of these different interventions at different time points: perinatal mental health, early child development, adolescent mental health, और जो adult mental health के हैं। And this is actually the mandate of Global Institute of Human Development, which is reimagining public health practice and research. So we have created huge scientific impact from Pakistan. और मैंने ये चीज़ें इसलिए यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में रहते हुए कोई अच्छी रिसर्च नहीं हो सकती, और यहाँ से बैठ के कोई अच्छा काम नहीं हो सकता, या बड़ी रिसर्च या हाई इम्पैक्ट और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस या ग्लोबल पॉलिसी इम्पैक्ट नहीं आ सकता। तो ये लांसेट में, जामा में, ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकियाट्री में पेपर्स हैं। ये जो हमारी इंटरवेंशंस हैं, दे हैव बीन टेकन अप बाय द WHO फॉर ग्लोबल डिसेमिनेशन। सो व्हाइल बीइंग बेस्ड इन पाकिस्तान यू कैन स्टिल क्रिएट ह्यूज इम्पैक्ट। और हमारा मकसद यही है कि रिसर्च से एजुकेशन को इन्फॉर्म करें, एजुकेशन से ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, और उससे सर्विसेज, एंड द साइकिल गोज राउंड। अबाउट वेलकम ट्रस्ट, जहाँ पे मैं भी बेस्ड हूँ करंटली लंदन में। सो ये दुनिया का सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ रिसर्च का फंडर है।
38 बिलियन पाउंड्स की इसकी एंडोमेंट है और 16 बिलियन पाउंड्स का हमारा नेक्स्ट 10 इयर्स का बजट है फॉर हेल्थ रिसर्च। और उसमें से 100 मिलियन पाउंड्स जो होते हैं, ये मिलियन में लिखना भूल गया हूँ, वो मेंटल हेल्थ का रिसर्च बजट है। सो व्हाट वी डू इज वी डिज़ाइन डिफरेंट रिसर्च फंडिंग कॉल्स, जिसमें ग्लोबली एकेडमिक्स अप्लाई करते हैं, हम उनकी रिसर्च प्रपोजल्स को एवेलुएट करते हैं और रिसर्च को फंड करते हैं। और getting a research grant from Wellcome is a high prestige thing for even the faculty in Oxford, Harvard, Hopkins, जो दुनिया की बेहतरीन साइंस की दुनिया है। जैसा कि अभी आप लोगों से बात करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि यू आर स्टिल काइंड ऑफ अर्ली इन योर करियर और अभी यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द लैंडस्केप। लेकिन जो भी जैसे आप लोग पब्लिक हेल्थ में या फार्मास्यूटिकल साइंसेज में काम कर रहे हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम कि आपका उसमें से एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और कौन से की फंडर्स हैं उस एरिया में। आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल हेयर। ये एक रिसर्च फंडिंग कॉल है जो मैंने डिज़ाइन की थी और अभी ये एप्लीकेशंस तो नहीं रिसीव करे, लेकिन हमने इसको मतलब इट इज़ क्लोज टू न्यू एप्लीकेशंस बट इट इज़ आउट देयर। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, डॉक्टर स्मारा से, सबा से, डॉक्टर बुशरा से, कि अगर आपको इस तरह से whenever you come across a funding opportunity, तो पहला आपके जहन में क्या ख्याल आता है? Sir, for me personally, I think when I see a call like this, it's very overwhelming. I actually get a little bit scared because I don't have the knowledge about how to apply for these grants. So I always approach them with a lot of fear, like something will go wrong, I'll miss it out. सॉरी, लास्ट बिट दोबारा से कहिएगा। I approach it with a lot of fear because I'm always afraid that I'll apply incorrectly or I'll do something wrong and then पूरी grant का amount का ज़्यादा जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अपने एक कॉमन एक्सपीरियंस शेयर किया और जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर किए। डॉक्टर सबा? आई थिंक कि पहले जो है प्रपोजल बनाना होगा कि हमें रिसर्च में क्या करना है, फिर उसके लिहाज से उसकी फंडिंग भी बना के तो फिर उसका और डॉक्टर बुशरा? ऐसे ही है सर, किसी ग्रांट को फोकस करने के लिए पूरा प्रोजेक्ट फ्रॉम ए टू जी उसका एक आइडिया हमारे जहन में होना चाहिए कि व्हाट वी वांट टू डू और प्रॉब्लम क्या है, उसको एड्रेस कैसे करना है और उसके लिए हमें क्या इक्विपमेंट, क्या फैसिलिटीज, कितनी एक्सपेंस एस्टिमेट होगा और आउटकम हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे बेनिफिट कैसे जो है वो मिलेगा। यानी जो ग्रांट है वी हैव टू फोकस कि उस ग्रांट का अपना इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसमें रहते हुए हमें उस पूरी एरिया को कवर करना है फ्रॉम ए टू जी। बिल्कुल ठीक। अम, मेरा ख्याल है आप लोगों ने एक स्पेक्ट्रम ऑफ अपने रिस्पॉन्सेज बताए हैं जो कि बिल्कुल ठीक हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं कॉमन थिंकिंग प्रोसेस के। जब भी कोई इस तरह की रिसर्च फंडिंग अपॉर्चुनिटी आती है तो लोगों के होते हैं। अम, आप जैसे आप लोगों ने खुद भी आइडेंटिफाई किया कि व्हाट यू वांट टू डू इज देन लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ कि व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, कि इसमें है क्या, व्हाट इज दैट दे वांट टू अचीव। तो एग्जैक्टली नॉर्मली जो पहली चीज़ जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ ना, इंसाइट, वो ये है कि जितनी आपको एंग्जाइटी होती है ना कि और ओवरवेलमिंग होता है ये आपके लिए एक्सपीरियंस, आई कैन टेल यू नाउ एज अ फंडर कि ये उतना ही हमारे लिए भी स्ट्रेसफुल होता है। बिकॉज टू गेट टू द राइट एप्लीकेंट्स, देखें, एक जो फंडर होता है ना, वो सॉलिड मनी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। यानी जब मैं फंडिंग कॉल्स डिज़ाइन करता हूँ तो वेलकम ट्रस्ट मिलियंस ऑफ पाउंड उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। अब आप ये एक्चुअली सोचें कि जब भी कोई इन्वेस्टर किसी भी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसके स्टेक्स कितने हाई होते हैं। तो जितना आप स्ट्रेस में होते हैं ना, आप ये समझें कि उतना ही सीरियस जो है वो आपका फंडर है, क्योंकि उसने उस आइडिया को 100 किस्म के मराहिल से गुजारा है, बिकॉज दे आर कमिटिंग मिलियंस इन रिसर्च फंडिंग टू दैट आइडिया। सो पहली चीज़ ये एक्नॉलेज करने की होगी कि यार इसने ना फुल एफर्ट की होगी हमें बताने के लिए कि किस तरह से हमने सक्सेसफुल होना है और व्हाट आर दे लुकिंग फॉर। तो ऑलवेज लुक एट द ग्रांट प्रपोजल जो कि या स्कीम पेज या उसकी जो डिटेल्स हैं इन फुल डिटेल, बिकॉज उसने सारी चीज़ें फंडर ने कोशिश की होगी कि आपको वो बताए
कि जिनके ज़रिए आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप इसको मिस आउट कर देते हैं तो जाहिर है दिस इज़ योर बैड। और अगर आप इसको समझ लेते हैं और इसको अप्रोच करते हैं इस तरीके से, तो आई थिंक इट इज़ सो इजी फॉर यू टू बी एबल टू गेट इट। तो पहला नुक्ता जो है ना वो ये है कि जितने आप एंशियस होंगे उससे ज़्यादा आपके फंडर्स एंशियस होते हैं, बिकॉज आपने तो अपना इंटेलेक्चुअल आइडिया कंट्रीब्यूट करना है, कुछ घंटे कंट्रीब्यूट करने हैं, फंडर ने एक्चुअली उसमें बिग अमाउंट्स कंट्रीब्यूट करनी है। सो दैट्स द फर्स्ट बिगेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात ये कि आप जिस तरह भी डिफरेंट फेजेस में हैं अपने करियर के, आपको ना अपने रिसर्च कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है। और रिसर्च कॉन्टेक्स्ट से क्या मुराद है कि नेशनल, ग्लोबल या रीजनल चैलेंजेस होते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट की स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ हैं। हर एक प्रोफेशन की अपनी प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं और वो लोग अपनी मीटिंग्स करती हैं, एजेंडा सेटिंग करती हैं। सो फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ के हवाले से देयर आर सो मेनी डिफरेंट इश्यूज। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट आर द की पब्लिक हेल्थ इश्यूज जिसके मुतालिक आप अवेयर हैं, तो व्हाट आर द सम ऑफ द थिंग्स दैट कम टू योर माइंड? Sir, for me, my thesis project was on vaccine hesitancy. Sorry, say that Particular, again. my thesis project was on vaccine hesitancy in Pakistan, particularly in cancer patients and in the context of COVID-19. सही That I think सही। was a very issue that I think affects a lot of Pakistanis. They were very resistant to vaccines even now. बिल्कुल ऐसे ही है। सो वो एक बिहेवियर चेंज का एरिया हो सकता है, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन या ट्रांस कल्चरल एलिमेंट्स के हवाले से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। सो डॉक्टर सबा, डॉक्टर बुशरा, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं कि आपको अपने रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में क्या समझ है? व्हाट आर द की एरियाज ऑफ रिसर्च फॉर यू? सर एक्चुअली फार्मास्यूटिकल साइंसेस काफ़ी ब्रॉड है, तो हमसे रेलेवेंट जो है वी हैव, जिस समय फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हूँ, बेसिकली अगर नैरो करके मैं देखूँ तो मेरे लिए सिंथेसिस और इससे रेलेवेंट, जिस तरह मैंने पीएचडी स्टडीज़ में भी किया पॉलीयूरेथेन सिंथेसिस, लेकिन उसकी एप्लीकेशन को फिर मैंने मेडिकल साइंसेस के साथ लिंक करके और मसल रिजनरेशन पे काम किया। तो इस तरह फार्मास्यूटिकल साइंसेस तो काफ़ी ब्रॉड है हमारे लिए, काफ़ी आई थिंक ज़्यादा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसाइट दैट यू आर शेयरिंग, बिकॉज हर एरिया इसी तरह ब्रॉड है। जब आप रिसर्च की बात करते हैं ना, मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको, एक्चुअली दैट वाज अ पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक, कि ये एरियाज बहुत ब्रॉड हैं और इसमें से ना आपको अपना नीश आइडेंटिफाई करना होता है और आपको ना लिंक अप होना होता है, नेटवर्क होना होता है अपने की स्टेक होल्डर्स के साथ। unless you are part of those meetings, unless you are part of that network, you won't know कि what are the key pressing issues in your own area of research। और फिर जब उसके लिहाज से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पॉलिसी बनती है और फिर वो पॉलिसी डिफरेंट की स्टेक होल्डर्स, फंडर्स तक जाती है और फिर वो उस लिहाज से फंडिंग एलोकेशन करते हैं और फिर उस लिहाज से फंडिंग कॉल्स होती हैं। तो अनलेस आप इस तमाम इकोसिस्टम का हिस्सा ना हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी सक्सेसफुल इन इंटरनेशनल लेवल इस तरह की रिसर्च ग्रांट्स में। और उसमें पाकिस्तान में क्योंकि कल्चर थोड़ा सा ये है कि आपने एचईसी की ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं जो यूनिवर्सिटी में ही आ रही होती हैं, लेकिन उसका मैंडेट और स्कोप उसी की तरह का होता है। मैंने कभी रिसर्च ग्रांट्स एचईसी की ना अप्लाई की, ना ली, और ना ही कोई ऐसा मेरा कभी इंटरेस्ट रहा है। मैंने हमेशा इंटरनेशनल रिसर्च ग्रांट्स ही अप्लाई की हैं, बिकॉज आई फेल्ट कि आई एम मच मोर अलाइंड विद द एकेडेमिया ग्लोबली रादर देन विद इन पाकिस्तान, विच इज़ वेरी कंस्ट्रेनिंग और बहुत अनसर्टेनिटीज होती हैं और बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी होती है। सो सो आई थिंक ये जो है सारा सिस्टम, अगर आपको अपने अपने एरियाज में इसकी समझ है और की एरियाज की समझ है और की डेवलपमेंट्स की, तो योर जॉब विल बी मच मोर इजियर। सो अगेन यही जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अब आप अपना कॉन्टेक्स्ट समझें, आपको स्टेक होल्डर्स अपने पता हों, आपको पता हो कि उससे मुतालिक नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसीज़ क्या हैं, की गैप्स इन द नॉलेज क्या हैं, नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च फंडर्स कौन है आपके एरिया में और उनकी फंडिंग पॉलिसी क्या है और उनकी शेड्यूल ऑफ फंडिंग कॉल्स क्या है और उसी के लिहाज से आपका एक्शन प्लान क्या है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना, दे आर मोस्ट फंडामेंटल। और जाहिर है इनका जवाब आप कभी एक साल में, 6 महीनों में नहीं निकाल सकते। दिस विल नीड अ वेरी कंसिस्टेंट एक्शन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू
टू स्टार्ट नेटवर्किंग। एक प्रोफेशनल की जो नेट स्ट्रेंथ होती है ना, वो उसके अपने प्रोफेशनल नेटवर्क्स होते हैं। और दूसरा जो अहम पार्ट है इसका, वो है कि आपका अपना पब्लिकेशन रिकॉर्ड क्या है आपकी रेलिवेंट फील्ड में। हमारे जो एकेडमिक्स होते हैं ना, उन्हें हर पब्लिकेशन के अंदर पता चलता है, वो शामिल हुए हुए होते हैं। किसी ने गायनी में की है तो उसके साथ मिल गए तो उसमें भी हो गई, किसी ने फिर सर्जरी में की तो उसके साथ भी हो गए, फिर उसके बाद किसी ने फार्मेसी में की उसमें भी आ गए, फिर किसी ने किसी और एरिया में की। जब भी रिसर्च ग्रांट्स होती हैं वो बहुत स्पेसिफिक एरिया में होती हैं, और हम एज अ फंडर जब एवेल्युएट कर रहे होते हैं ना, तो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज अ पब्लिकेशन रिकॉर्ड। पहली चीज़ आपका रिसर्च का क्वेश्चन, उसकी स्ट्रेंथ, मेथडोलॉजी की स्ट्रेंथ, लेकिन जो सबसे अहम डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो आपका आपका पब्लिकेशन रिकॉर्ड होता है। तो आई डोंट नो कि आप लोगों ने भी कितनी पब्लिकेशंस की हैं, कितनी हैं, व्हाट इज द नंबर, लेकिन आपके लिए सबसे अहम जो ज़रूरी चीज़ है, तो मैं अगर कहूँ कि इस स्लाइड से दो की टेक अवेज क्या हैं। एक ये कि आपके प्रोफेशनल नेटवर्क्स अपने रेलिवेंट एरिया में बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और दूसरा, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पब्लिकेशंस। कोशिश करें इंटरनेशनली पब्लिश करें, पीयर रिव्यूड में करें, और इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में करें। दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट एरिया। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लोग मुझसे पूछते हैं, कि ये एक चिकन एंड एग स्टोरी बन जाती है। लोग ये कहते हैं कि अगर आपके पास इंटरनेशनल हाईली कम्पिटिटिव रिसर्च ग्रांट्स नहीं होंगी तो आप अच्छी पब्लिकेशन कैसे करेंगे, और अगर अच्छी पब्लिकेशन नहीं करेंगे तो फिर इस तरह की अच्छी ग्रांट्स कैसे आएंगी। दैट इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट, कि जब आप एक नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर ऐसा काम आसान हो जाता है। लेकिन आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल विदाउट इट। मैंने बिल्कुल एक मेडिकल ग्रेजुएट की तरह, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज इन 2009, और उसी तरह से ही आई स्टार्टेड ऑफ। अगर आप मोटिवेटेड हों, कमिटेड हों, हार्ड वर्किंग हों, और ये करना चाहते हो, तो ये हो जाता है। मतलब यू डोंट नीड बिग फंडिंग टू बिगिन विद दिस। यू कैन फाइंड ग्रुप्स, यू कैन फाइंड अपॉर्चुनिटीज एंड पब्लिकेशंस जहाँ पे आप ये कर सकते हैं। कुछ ऐड इज देयर करना एनी? चाह रहा हूँ। जी जी जी, डॉक्टर मिश्रा जिस प्लीज। तरह आप कह रहे हैं ना कि मतलब जाहिर है दोनों चीजें साइड बाय साइड हैं। अगर आप बिगनर्स हैं और पब्लिकेशन ज्यादा नहीं है तो इन माय व्यू जब आप ग्रांट लिख रहे हैं तो आप उसमें अपने कोलैबोरेटर्स ऐसे डाल सकते हैं जिनकी पब्लिकेशन आपकी फील्ड में या जो ग्रांट आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें अच्छा रिकॉर्ड हो। तो आई थिंक ये भी आपको, अगर आपकी अपनी नहीं है तो कम से कम कोई ना कोई कोलैबोरेटर आप ऐसा ऐड कर ले जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो। हाँ, डिपेंड करता है कि कितनी competitive है। अगर बहुत ज़्यादा competitive होगी और आप एज लीड ऑथर हैं उसके, और आपकी पब्लिकेशन रिकॉर्ड नहीं है, तो यू माइट लूज ऑन द competitiveness देन, बिकॉज इफ देर इज समवन इंटरनेशनली जिसका प्राइमरी एरिया ऑफ रिसर्च यही है। क्योंकि पब्लिकेशन रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि आप उस एरिया में कितने वेल नोन हैं, कितने उस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं। तो दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन दैट पार्ट। और दूसरा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कोलैबोरेशंस, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप किसी एरिया के मुतालिक आपने कोई फंडर आइडेंटिफाई किया है, फंडिंग कॉल आइडेंटिफाई की है, और आप उसमें जाना चाहते हैं, तो उन कोलैबोरेटर्स को साथ कोशिश करें कि पहले कुछ पब्लिकेशंस कर लें इन द रन अप फॉर दैट ग्रांट। और अगर आप पब्लिश कर चुके होंगे उनके साथ, सो दैट विल बी डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड विल गिव यू अ कम्पिटिटिव एज। सो आई होप दैट इज क्लियर। अ, दूसरी चीज़ ये है कि फेजेस ऑफ रिसर्च भी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च ग्रांट्स होती हैं। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे बिल्कुल अभी कम काम हुआ होता है, वहाँ नीड्स असेसमेंट होनी होती है। फिर उसके बाद कुछ एरियाज हैं जहाँ पे इंटरवेंशन डेवलपमेंट होती है। फिजिबिलिटी एंड पायलट टेस्टिंग की अलग से ग्रांट्स होती हैं जो स्मॉल ग्रांट्स होती हैं। इफेक्टिवनेस ट्रायल की बड़ी रिसर्च ग्रांट्स होती हैं। स्केल्ड अप इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। और पॉलिसी की रिसर्च ग्रांट्स अलग से होती हैं। सस्टेनेबिलिटी के हवाले से और एलिमेंट्स होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है कि आप अपने आप को इस स्पेक्ट्रम में कहाँ पे प्लेस करते हैं। इसके सारों चीज़ों के लिए अलग अलग सेट ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए होता है। तो यू विल हैव टू सी कि ईदर यू और योर कोलैबोरेटर्स और पार्टनर्स नीड टू ब्रिंग दैट एक्सपर्टीज टू द टेबल। चलिए यहाँ से आपसे ही शुरू करते हैं दोबारा से, कि आपके ख्याल में क्या चीज़ एक एप्लीकेशन को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बनाती है? अभी तक आप लोगों की क्या इंसाइट्स और टेक अवेज हैं, सो दैट आई बिल्ड ऑन दैट। आप तीनों में से कोई भी बोलना चाहे पहले? डॉक्टर स्मारा, डॉक्टर सबा, डॉक्टर बुशरा। सर जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था
कि जितना स्ट्रॉन्ग आपने उसमें फर्दर ऐड किया कि हम उस फंडर के इंटरेस्ट को, उसकी वेबसाइट को अच्छी तरह देखें कि उसका इंटरेस्ट क्या है, या उस एरिया से रेलेवेंट ग्लोबली प्रॉब्लम कौन सा करंट है चल रहा, उसको एड्रेस करने की कोशिश करें, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद फिर हमारी स्ट्रेटजी या जो हम आउटकम देना चाह रहे हैं वो कितनी हेल्पफुल हो सकती है उस डिजीज को या उस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सबा, आपका क्या ख्याल है? अ, मैंने अभी तक वैसे ग्रांट कभी लिखी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में कि इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए जब भी आप प्रपोजल अपना बना रहे हैं, और वही कि आउटकम मेन फोकस क्या है। जिस तरह पहले अपना एरिया भी हमें क्लियर होना चाहिए, और जहाँ से ग्रांट लेनी है उनका भी फोकस क्या है उसको भी माइंड में रखना चाहिए, और क्लियर एंड कंसाइज पिक्चर हो हमारे सामने। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर स्मारा। हाँ डॉक्टर स्मारा, डू Oh, यू वांट टू sorry. कंटिन्यू? जी जी, नो I'm वरीज। sorry, I couldn't figure out the mute. I think national grants की अगर आप जिस तरह बात करेंगे, then I think the more relevant you can make it to the particular requirements of that grant application itself, and the more targeted you are, I think that would probably contribute to your success more. Rather than in, I think, जो local जिस तरह के grants होते हैं, उसके अंदर you do tend to have a lot more थोड़ी सी ज़्यादा inflated सा एक वो आ सकता है. You need more broader definitions and broader things. And that is सही my impression so far. सही। डिपेंड करता है डेफिनेटली आप लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर ही। और जैसे आप लोगों ने कहा कि रेलेवेंट स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन होना, और दूसरी जो अहम पार्ट है वो है कि सॉलिड डेमोन्स्ट्रेटेबल ट्रैक रिकॉर्ड होना लीड एप्लीकेंट और टीम का। आई थिंक दीज आर द टू की पार्ट्स। आपका रिसर्च क्वेश्चन और जो शख्स वो रिसर्च क्वेश्चन प्रपोज कर रहा है उसका सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड होना उस एरिया में। तीसरी चीज़ टीम आपकी और हिस्ट्री ऑफ कोलेबरेशन। चौथा आपका रिसर्च इन्वायरमेंट, अपॉर्चुनिटी, और फिर उसके बाद बाकी सारे रिसर्च ग्रांट के जो सेक्शंस होते हैं उनको बहुत क्लियरली आर्टिकुलेट करना, उसे कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करना, स्टडी डिज़ाइन और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन मेरा ख्याल है जो सबसे अहम दो पार्ट्स है ना, वो आपका रिसर्च क्वेश्चन की स्ट्रेंथ है और आपका अपना ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर ये दो चीज़ें ठीक हैं तो योर चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और अगर अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ट्रैक रिकॉर्ड आपका डेमोन्स्ट्रेट होता है आपकी पब्लिकेशन से, if you have not published in your area of research, then it is very less likely that you will be successful. So start to publish. I think that is the most important bit. अब आप लोग क्योंकि फैकल्टी का हिस्सा हैं, सो द रेस्ट ऑफ द ये स्लाइड्स आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये हम अंडर ग्रेड मेडिकल स्टूडेंट्स के तौर पे ही शुरू कर देते हैं काम, कि आपका जो सिलेक्शन एनालिसिस एंड स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है, जो कि फीड इन करता है आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को, हाइपोथेसिस को, और फिर इन्फॉर्म करता है रिसर्च मेथड्स को। एक रिसर्च ग्रांट प्रपोजल के अंदर भी यही चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैंने जो दो एरियाज एम्फसाइज किए वो यही थे कि रिसर्च क्वेश्चन और ट्रैक रिकॉर्ड, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और फिर उसके बाद व्हाट न्यू इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, हाउ विल यू कलेक्ट दैट इन्फॉर्मेशन, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये जो डिफरेंट सेक्शंस है ना, दिस इज एक्चुअली द सॉर्ट ऑफ अ फ्लो फॉर अ ग्रांट एप्लीकेशन, कि आप किस तरह से अपने लॉजिकल आर्गुमेंट को बिल्ड करते हैं, या एक जो एवेल्युएटर होता है इस रिसर्च प्रपोजल का, वो इस तरह से इस थॉट प्रोसेस को क्लियरली देखना चाहता है कि दिस इज हाउ इट शुड फ्लो वेरी नीटली। आपकी स्टेटमेंट क्या थी, आपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे फॉर्मुलेट किए, आप किन मेथड्स के जरिए उन्हें असेस करेंगे, आपने एथिक्स का ख्याल रखा है या नहीं रखा, आप किस अप्रोच से वो डाटा कलेक्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, और इस सारी चीज़ का इम्पैक्ट क्या होगा। अब ये अगेन इनमें से कोई भी चीज़ आप लोगों के लिए नई नहीं होगी। बैकग्राउंड, स्पेसिफिक एम्स, क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, स्टडी सेटिंग, मेथड्स, स्टडी डिज़ाइन, सैंपल साइज, पावर कैलकुलेशन, कलेक्शन, एनालिसिस, इम्पैक्ट, एथिक्स, रिसर्च टीम, इंस्टीट्यूशन, फैसिलिटीज़, ये सेम ही है। सो एक्चुअली जो इस मेन अहम चीज़ है वो उस इकोसिस्टम को समझना, अपने ट्रैक और रिकॉर्ड को समझना। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और क्राइटेरिया फॉर प्रायोरिटाइजिंग हमारे लिए जो होता है, जो फंडर्स होते हैं नॉर्मली, सो दे लुकिंग फॉर इनोवेटिव रिसर्च क्वेश्चंस, दे वांट टू सी रेलेवेंस टू द फंडिंग अपॉर्चुनिटी जो कि आई है। और डेफिनेटली अगर आपका आइडिया बहुत
अच्छा भी है, लेकिन उसी एरिया में 3 4 या 5 रिसर्च प्रपोजल्स या उसी टॉपिक पे हमारे पास आ गए हैं, तो डेफिनेटली कोई भी फंडर एक ही एरिया में 2 या 3 प्रपोजल्स नहीं देना चाहेगा, वो 2 3 4 डिफरेंट एरियाज में करना चाहेगा। सो मतलब अगर आप अपनी चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो थिंक ऑफ एरियाज वेयर you are the key kind of person in the field, which will increase the chances of your success. टाइमलीनेस होनी उस आइडिया की, जैसे अब अगर आप आज के टाइम में कोई कोविड रिलेवेंट रिसर्च प्रपोजल सबमिट करेंगे तो इट माइट नॉट मीन एनीथिंग, लेकिन आज से कोविड के टाइम में करते तो जाहिर है उस टाइम शायद कोई और आइडिया ना इतना पिकअप करता जितना कोविड रिलेटेड रिसर्च करती। फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट आर इम्पॉर्टेंट। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स, मतलब आपने बहुत अच्छी रिसर्च की, क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन उसकी फाइंडिंग्स की इम्प्लीकेशन क्या होगी। और एथिक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपने उन अंडरपिनिंग्स को नहीं देखा तो आपका रिसर्च क्वेश्चन जो है वो ही क्वेश्चनेबल हो जाता है। आई थिंक कि आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर है, आई डोंट नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस, के जो बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन का सेक्शन है वो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसकी आइडेंटिफिकेशन, प्रायोरिटाइजेशन, एनालिसिस, फिर आप स्पेसिफिक एम्स लिखते हैं जो कि आपका रैशनल बताता है, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, और फिर ऑब्जेक्टिव्स। वी ऑल नो कि द ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी स्मार्ट। हाइपोथेसिस, वी ऑल नो अबाउट नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, स्टडी सेटिंग्स बड़ी अहम होती हैं कि आप क्लियरली एलेबोरेट करें कि आपने कौन सी स्टडी सेटिंग प्रपोज की और वो क्यों की है। रूरल है, अर्बन है, कम्युनिटी है, इंस्टीट्यूशनल है, कोई स्पेसिफिक जियोग्राफी है, रीजन है या कंट्री है, और वो सब क्यों किया आपने। यू नीड टू बी एबल टू जस्टिफाई इट वेरी क्लियरली। फिर इसी तरह आपने उसमें कौन सी पॉपुलेशन ग्रुप आइडेंटिफाई किए और क्यों किए, अगेन। फिर इसी तरह आपने कौन से मेथड्स यूज किए, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, और उनमें से कौन से, और अगेन हाउ आर दे रेलिवेंट टू योर रिसर्च क्वेश्चन। और एक बहुत अहम एरिया होता है सैंपल साइज कैलकुलेशन का और पावर कैलकुलेशन का। इवन हम जो बहुत बड़े बड़े एकेडमिक्स हमें रिसर्च ग्रांट सबमिट करते हैं वेलकम ट्रस्ट में, समटाइम्स दे आल्सो मिस ऑन दीज एरियाज। सो ये बड़ा अहम है और इसको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता किसी भी लेवल के ऊपर, क्योंकि जो भी आप एक्सपेरिमेंट रन करेंगे अगर वो पावर्ड नहीं है उसको एनालाइज करने के लिए, तो यू वोंट मच गेट मच आउट ऑफ इट। और फिर आपका डाटा एनालिसिस प्लान बहुत क्लियर होना चाहिए, और अगेन एक क्लियर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्लान गिवन होना चाहिए कि आप अपना रिसर्च क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे। ह्यूमन सब्जेक्ट्स जो आप रिसर्च में इन्वॉल्व करेंगे उनकी प्रोटेक्शन कैसे होगी और रिसर्च की गवर्नेंस कैसे होगी, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू सी एन इंडिपेंडेंट ओवरसाइट ऑफ रिसर्च जो भी कोई फंड कर रहा होगा। And last but not the least are the publication and dissemination plans. So you also have to give these publication and dissemination plans. आई होप कि यहाँ तक ये वाली कन्वेंशनल चीज़ें हैं, इसलिए मैंने आई हॉन्ट गॉन इन टू द डिटेल्स, बिकॉज हम सारे पढ़ाते भी रहे हैं, पढ़ते भी रहे हैं सारा कुछ। इफ़ यू एनी क्वेश्चंस ऑन दैट तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं, देन आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। और इज इट क्लियर? तो फिर आई कैन मूव ऑन। I have a question. जी जी। मुझे जैसा आपने बोला कि जब ग्रांट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें एक ये होता है कि आपके पब्लिकेशन कितने हैं, तो उसमें क्या कि कितने एटलीस्ट हमारे जो रेलेवेंट फील्ड है या जिसके लिए हम ग्रांट अप्लाई करें कितने पब्लिकेशंस होने चाहिए मिनिमम? इट्स नॉट अबाउट कितने हैं, इट्स मोर अबाउट कि आप जो है उस रिसर्च अपॉर्चुनिटी के लिहाज से कितने वेल प्लेस्ड हैं। there is no number that can actually any funder would be able to tell you कि इतनी रिसर्च पब्लिकेशंस हों तो ये बहुत अच्छा होगा। आप जो चीज़ प्रपोज कर रहे हैं आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा डेमोन्स्ट्रेटेबल होना चाहिए कि किसी को भी वो देख के पढ़ के ये चीज़ का फौरन एहसास हो जाए कि ये जो एकेडमिक है जो प्रपोज कर रहा है ये वाकई इस एरिया ऑफ रिसर्च में वेल एम्बेडेड है, इंटीग्रेटेड है। और जब आपको याद है वो जो स्लाइड मैंने शो की थी जिसमें मैंने कहा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च ग्रांट्स होती हैं, ये वाली, इसका भी मकसद एक्चुअली यही था आपको दिखाने के लिए कि सॉरी एक मिनट, ये वाला। अब अगर फिजिबिलिटी और पायलट स्टडीज है ना और आप एक अर्ली करियर में हैं अपने, तो जाहिर है इसमें बहुत ज़्यादा आपकी पब्लिकेशंस नहीं भी होंगी और आप कोई एरिया टेस्ट मतलब किसी एरिया में फिजिबिलिटी इंटरवेंशन असेस कर रहे होंगे तो यू मे स्टैंड अ गुड चांस।
लेकिन अगर आप इफेक्टिवनेस ट्रायल कर रहे हैं, स्केल्ड अप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, पॉलिसी इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, तो यू नीड टू हैव अ डेमोन्स्ट्रेटेबल ट्रैक रिकॉर्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग। इस तरह नीड्स असेसमेंट, so to be able to identify the right opportunity for your career stage is important, and that will determine कि आपको कितना strong CV चाहिए उस area of research के लिहाज से. So it all depends upon the type of funding you're applying for. So for example, one of the faculty was interested in climate and uh, impact on health, और वो मुझसे पूछ रहे थे, तो I told them about a funding opportunity which was about $10,000, लेकिन वो अर्ली करियर के जो आपके एकेडमिक्स हैं जिनकी इनिशियली पब्लिकेशंस नहीं होंगी, सो उनके लिए दैट कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट स्टिल इट वुड बी कम्पिटिटिव। अगर आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स उस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर देते हैं तो यू वोंट बी एबल टू गेट इट, बट it entirely depends upon the sort of opportunity that you are applying for. I hope that answers your question, Dr. Sabha. Yes, thank you. ठीक है, so the next part is about, मैंने उसी फंडिंग कॉल का आपको मिसाल दी है कि जब अस्सलाम हम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा एक मोहम्मद अजहर बात कर रहा हूँ। जी 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 मेरा एक क्वेश्चन है, जब हम लोग रिसर्च ग्रांट के लिए प्रपोजल लिख रहे होते हैं और नॉर्मली हम जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड जी इनमें कोई चेंजेस या कोई ऐसा पैटर्न्स या लाइक स्टाइल है, कोई डिफरेंसेस है कि जिसका इम्पैक्ट पड़ता हो ग्रांट की एक्सेप्टेबिलिटी पे, या हम सिंपल जो हमारा क्राइटेरिया होता है इंट्रोडक्शंस एंड बैकग्राउंड, तो उसी को ही फॉलो करें? थैंक यू सर। थैंक यू। आई थिंक इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन के व्हाट इज द रिसर्च अपॉर्चुनिटी अबाउट। अगर तो वो रिसर्च अपॉर्चुनिटी जो है आपको उसके लिहाज से उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना होता है, और अगर आप मेरी ये स्लाइड देख सकते हैं, सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द सिलेक्शन एनालिसिस एंड स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाई इट शुड बी स्टडीड एंड व्हाई दिस अपॉर्चुनिटी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इट। सो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, उसकी प्रायोरिटाइजेशन बतानी है अपने नेशनल इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, और उसको जस्टिफाई करना होता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स, एंड इट विल बी वेरी स्पेसिफिक टू एवरी स्पेसिफिक फंडिंग कॉल, जो भी आपका अपॉर्चुनिटी होगी, और उसी के लिहाज से आपको इसे प्रोसीड करना होगा। आई होप दैट एड्रेसेस योर क्वेश्चन, डॉक्टर अजहर। यस सर। थैंक यू। इफ देयर नो मोर क्वेश्चंस, आई जस्ट वांट टू शो यू कि ये असेसमेंट क्राइटेरिया है जो कि उसी फंडिंग अपॉर्चुनिटी का है जो मैंने आपसे इनिशियली शेयर की थी, just to give you an idea of how important it is, and how do the funders actually assess applications. So जो सबसे अहम पार्ट है, अगर आप देखें, 40% पोटेंशियल फॉर इम्पैक्ट, आपका रिसर्च क्वेश्चन, आपकी प्रपोज्ड मेथडोलॉजी एंड कंसिडरेशन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। 40% वेटेज इस चीज़ की है। उसके बाद जो नेक्स्ट अहम चीज़ है वो है आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ की, यानी जो क्वेश्चन जो लोग प्रपोज कर रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं इफेक्टिवली या नहीं दे सकते। वेलकम ट्रस्ट के लिए लिव्ड एक्सपीरियंस, जो लोग विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी रिसर्च में साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेशन बड़ी ज़रूरी है, तो वी गिव 20% वेटेज टू इट। Every funder might have their different priorities and they may give a different weightage to different things. And similarly, suitability of research location, research environment, and research culture, we give very much importance to it. आपको एक्चुअली जब आप एक रिसर्च प्रपोजल देखें तो आपको एक्चुअली जाके उनका असेसमेंट क्राइटेरिया फिर देखना चाहिए कि वो किन किन मैट्रिसेस के ऊपर आपको असेस कर रहे होंगे, और उसके लिहाज से आपको अपनी एप्लीकेशन को टाइम देना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि वो उतनी स्ट्रांग है उन डिफरेंट एरियाज के अंदर। पोटेंशियल फॉर इम्पैक्ट में हम क्या देख रहे होते हैं कि उसमें इतना स्कोप है या एम्बिशन है कि वो सिग्निफिकेंट और मेजरेबल इम्पैक्ट लेके आएंगी। अब क्योंकि मेंटल हेल्थ की फंडिंग कॉल थी तो जाहिर है हमने इसको मेंटल हेल्थ स्पेसिफिक रखा हुआ है, और हमने मजीद डिटेल्स भी इस स्पेसिफिक, लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो हाइपोथेसिस ड्रिवन होना, अंडरपिनिंग मैकेनिज्म क्लियर होना, क्लियरली पॉपुलेशन को डिफाइन करना, एंड यूजर्स नीड को मीट करना, दीज आर द की थिंग्स दैट यू एड्रेस इन द रैशनल एंड पोटेंशियल फॉर इम्पैक्ट, जो कि इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड में भी आता है और डिफरेंट अदर सेक्शंस के अंदर भी आता है। इसी तरह जो दूसरा अहम पार्ट है इसी का, वो मेथडोलॉजी का है। आपने जो रिसर्च क्वेश्चन प्रपोज किया है उसको मैयर करने के लिए ऑब्जेक्टिवली क्या आपने अच्छे मेथड्स प्रपोज किए हैं या नहीं।
और वो फिजिबल हैं, आपकी एक्सपर्टीज है वो सब कुछ करने के लिए, आपका जो सैंपल साइज है वो पावर्ड है, आपने पावर कैलकुलेशंस की हुई है, आप जो प्रपोज कर रहे हैं कि मैं इतने सब्जेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट करूंगा, क्या वो आपने उसमें एड्रेस किया हुआ है, आप कैसे देख रहे हैं कि आपकी रिसर्च फील्ड को आगे लेके कैसे जाएगी, टाइमलाइंस फिजिबल हैं या नहीं, जो आपने बजट्स बताए हैं वो अप्रोप्रिएट हैं, वेल जस्टिफाइड हैं या नहीं। सो इसी मतलब सेक्शन के अंदर आपके पास दूसरा पार्ट ये है। तीसरा, इम्पैक्ट उसका क्या होगा। और इम्पैक्ट में जो अच्छी इंटरनेशनल रिसर्च होती है वो ये देख रही होती है कि ठीक है, आप पाकिस्तान में एक रिसर्च कर रहे होंगे, एक शहर में, दो शहरों में कर रहे होंगे, लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट उससे बियॉन्ड भी उस तरह की साउथ एशियन सेटिंग्स में या लो रिसोर्स सेटिंग्स में होगा या नहीं, उसका फर्दर पोटेंशियल क्या है, और उसकी फर्दर मार्केट क्या है, कौन लोग हैं जो उसमें इंटरेस्टेड होंगे, और आपने क्या रिस्क्स आइडेंटिफाई किए हैं, आपने मिटिगेशन स्ट्रेटजीज आइडेंटिफाई की हैं, क्या आपने एथिकल इम्प्लीकेशंस आइडेंटिफाई की हैं। सो दिस इज ऑल रियली इंपॉर्टेंट अगेन, जो आप उसमें आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा पार्ट आपके मुतालिक, आपकी प्रोफाइल के मुतालिक, लीड एप्लीकेंट, सबसे अहम बात, डू यू हैव द रेलिवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस। वो जो फंडिंग कॉल है, स्पेसिफिक जो टॉपिक है उसके अंदर आपका उससे मुतालिक कितना एक्सपीरियंस है, और वो रिसर्च आउटपुट्स के जरिए हम देखेंगे या प्रिलिमिनरी डाटा, और जैसे डॉक्टर साहब ने पूछा भी था कि कितनी पब्लिकेशंस, सो एज अप्रोप्रिएट फॉर देयर करियर स्टेज। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे भी क्लैरिफाई करूँ कि जब आप इंटरनेशनल रिसर्च ग्रांट्स के लिए compete कर रहे होते हैं, तो आप लोगों के लिए ये शायद किसी को इल्म भी हो, यूएस में या यूके में अर्ली करियर रिसर्चर किसको डिफाइन करते हैं, डू यू हैव एनी आइडिया। यूके या यूएस की डेफिनेशन में अर्ली करियर रिसर्चर वो होता है जिसने अपनी एमबीबीएस, एमडी, या जो भी आपने बीएस अपना किया होगा कोई और अलाइड हेल्थ साइंसेज का, वो किया हो, उसके बाद आपने पीएचडी की हो, उसके बाद आपने पोस्ट डॉक्टरेट की हो, और आप अपने 10 साल के अंदर हो पहले पोस्ट डॉक्टरेट के बाद, तो आप एक अर्ली करियर रिसर्चर कंसिडर किए जाते हैं। और अर्ली करियर रिसर्चर जो बंदा पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट और ये सब कर चुका होता है और पहले 10 सालों में होता है पोस्ट डॉक के बाद, अब उससे ये उम्मीद की जाती है कि जाहिर है उसकी 40-50 पब्लिकेशंस इंटरनेशनल ज़रूर होंगी। तो जब आप इंटरनेशनली compete कर रहे हैं तो कीप इन माइंड कि आपके साथ जो लोग दूसरे अर्ली करियर के अप्लाई कर रहे होंगे वो इस स्टेज ऑफ द करियर के ऊपर होंगे। दूसरी बात यह कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि आपका एक्सपीरियंस है इस तरह के कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम को लीड करने का, या अगर आप खुद नहीं तो आपके पास ऐसा सपोर्ट मेंटर्स मौजूद हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे इसको नेविगेट करने में। तीसरी अहम चीज़ रिसर्च मैनेजमेंट की। अब बहुत सारे ऑरिक के ऑफिसेज होते हैं, मेरे ख्याल है बीचीसी ने जो पाकिस्तान में पॉलिसी लेके आए हैं, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर कि उनका रिसर्च ग्रांट मैनेजमेंट के क्या मैकेनिज्म्स होते हैं। बट यू नीड टू बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट कि अगर आप इंटरनेशनल रिसर्च ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि यू आर एबल टू रिसीव दैट ग्रांट, और अगर आपने दूसरी इंटरनेशनल रिसर्च ग्रांट्स रिसीव किए हैं तो दे ऑलवेज हेल्प। सो इट्स ऑलवेज गुड टू साइट कि जी हमारी यूनिवर्सिटी ने ये बड़ी ग्रांट्स रिसीव की हुई हैं और वो से कर सकेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास टाइम है रिसर्च को देने का, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च जो है जस्ट इज एन एड ऑन टू मैनी अदर थिंग्स दैट वी आर सपोज टू डू, बट इट नीड्स इट्स ओन टाइम। तो आपको ना फिर उतना स्पेयर टाइम एक्चुअली चाहिए होता है अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ादी का। 20% का मतलब ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी या आपका डिपार्टमेंट आपको एक दिन हफ्ते में अलाउ करे कि आपने और कोई काम नहीं करना सिवाय इस रिसर्च प्रोजेक्ट के। सो यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट एंड ब्रिंग अ लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर डीन और सुपरवाइजर कि आप वाकई इसके ऊपर इतना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। को एप्लीकेंट्स आर वेरी एसेंशियल, क्योंकि जाहिर है कोई भी एक शख्स जो है ना उसकी तमाम एक्सपर्टीज हो ही नहीं सकती। अगर आप एक फिजिशियन है फॉर एग्जांपल, या पब्लिक हेल्थ के बंदे हैं, तो आपको एक स्टैटिस्टिशियन चाहिए होगा ज़रूर, आपको डाटा कलेक्शन के लिए लोग चाहिए होंगे, आपको इंटरवेंशन डेवलपमेंट के एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे, आपको हो सकता है पॉलिसी के स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड चाहिए हों। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एप्लीकेशन में को एप्लीकेंट्स भी शामिल करें जो कि रेलिवेंट एक्सपर्टीज लेके आए। टीम, ये चीज़ बहुत अहम देखी जाती है कि एक जस्टिफाइड टीम हो, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हो जिसमें तमाम नेसेसरी एक्सपर्टीज और टेक्निकल स्किल्स उससे मुतालिक उसके अंदर मौजूद हो, और दे शुड बी एबल टू वर्क इफेक्टिवली
दे शुड हैव अ डेमोन्स्ट्रेटेबल ट्रैक रिकॉर्ड कि उन्होंने काम किया है इकट्ठे और इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। लिव्ड एक्सपीरियंस इन्वॉल्वमेंट ये हमारी वेलकम ट्रस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अदर फंडर्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक मेयार। तो इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी देखें और गहराई में देखें और मेक श्योर करें कि यू आर एबल टू एड्रेस देम। और फिर फाइनली सूटेबिलिटी ऑफ रिसर्च लोकेशन, रिसर्च एनवायरनमेंट एंड रिसर्च कल्चर। तो आपको एक्चुअली इस तरह की डिफरेंट मिसालें दे के वाज़ेह करना होता है कि किस तरह से आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, कल्चर है और जो कमर्शियल इन्वायरमेंट है या एकेडमिक इन्वायरमेंट है वो उसको लिए सूटेबल है उस रिसर्च क्वेश्चन के लिए, एंड विल बी एबल टू सपोर्ट यू। तो की पॉइंट्स क्या हैं इस तमाम चीज़ के कि सबसे अहम नुकता ये है कि पब्लिश इन हाई इम्पैक्ट इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल्स। अगर आप इस एरिया में जाना चाहते हैं एकेडेमिया के, रिसर्च के, तो आपकी पब्लिकेशंस आर योर की स्ट्रेंथ। अगर आपकी पब्लिकेशंस नहीं है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो अगर आप इस एरिया में जाना चाहते हैं, अभी से अपना प्लान बनाएं, अपना नीश आइडेंटिफाई करें, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं, अपनी टीम बनाएं, अपना नेटवर्क बनाएं, अपने रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ लिंक अप हों, जिसमें पीयर्स भी हैं, इसमें फंडर्स भी हैं, इसमें पॉलिसी मेकर्स भी हैं, और इनके साथ मिलके पब्लिकेशंस शुरू करें, आइडियाज़ डिस्कस करना शुरू करें, कॉन्सेप्ट नोट्स बनाएं, फीडबैक लें। जब एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करें तो फिर उसमें एक अच्छी रिसर्च ग्रांट एप्लीकेशन लिखें। और ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिस होती है इंटरनेशनली कि जब कोई फैकल्टी मेंबर ग्रांट लिखता है ना, तो जो सीनियर फैकल्टी के लोग होते हैं वो उनको भेजता है फॉर देयर इनपुट्स एंड फीडबैक इनटू इट। हमारे यहाँ ये कल्चर अभी इतने डेवलप नहीं है और इनके अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट रियली हेल्प्स जूनियर फैकल्टी मेंबर्स टू डेवलप इनटू दैट रोल। एक और जो बड़ी अहम चीज़ होती है एज अ फंडर, जो मुझे अब ज़्यादा एहसास होता है कि लगता तो ये है कि मतलब सारे सीनियर लोग होंगे और वो सब कुछ होगा, लेकिन मैनी सीनियर पीपल इवन दे फेल टू सबमिट अ वेरी गुड एप्लीकेशन ऑन टाइम, एंड एज फंडर्स यू कैन मेक नो एक्सेप्शंस। सो सबमिट इन टाइम। और आखिरी चीज़, बीइंग अ मुस्लिम भी और बीइंग अ प्रोफेशनल भी, कि ये कुछ भी इनमें से 2+2 4 नहीं होता। बहुत दफ़ा जो है वो आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी और चांस मिल जाता है जो अदरवाइज सोचा नहीं जा रहा होता, लेकिन उस टाइम जब आप फंडिंग कमेटी में बैठे होते हैं तो एक कॉन्टेक्स्ट और क्रिएट हो जाता है इस तरह का। फॉर एग्जांपल, आपने जो रिसर्च प्रपोजल दिया है वो एक ही प्रपोजल है उस एरिया में और वो स्टिल एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड का है और उतना कम्पिटिटिव नहीं है एज अपोज टू एक और रिसर्च एरिया जहां बहुत कम्पिटिटिव लोगों ने बहुत प्रपोजल डाले हुए हैं। तो विद इन द सेम फंडिंग कॉल भी बाज़ औक़ात थोड़े से relatively less competitive research proposals get through. So there is always this chance as well. So I think these are the key things that I wanted to share with you. I'm happy to answer any questions or comments that you may have now. Thank you. Sir, I would like to make a comment. Ji, please. First of all, thank you so much for such a nice and comprehensive but yet concise presentation. You have talked very nicely and talked about very key concepts जो कि हमारे यहाँ overlook कर दिए जाते हैं by very senior people as well. क्योंकि I'm early on in my career. I won't say early career जिस तरह आपने define किया है. I've just started teaching in the field of community medicine, but yet again when we work with our seniors तो वो उनसे बात करके अब जब आपकी हमने बात सुनी है तो अंदाजा होता है कि there are many things that maybe they don't know themselves. जब although they have been working in the field for many years and probably they have many publications as well, लेकिन when they ask their juniors कि आप लिखें जी, आप ग्रांट के लिए proposals लिखें, तो they are just आपको ऐसे एक बाहर आउट इन द वाइल्ड भेज देते हैं कि जाओ जैसे कुछ पकड़ के ले आओ एनिमल। इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो बात की, आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, बट ये जो पब्लिकेशन रिकॉर्ड वाली बात है, आई डोंट नो कि क्या उन लोगों को पता नहीं होता या वो हमें बताना नहीं चाहते कि यू शुड हैव अ पब्लिकेशन रिकॉर्ड। व्हेन आई टॉक विद माय कोलीग्स तो हम यही बात करते हैं कि वन शुड हैव वन नीश एंड देन आप उसमें एक्सेल करें ना, एक स्किल पकड़ लें और उसको
पॉलिश करें, एक एरिया आइडेंटिफाई कर लें और उसमें काम करें. लाइक व्हेन आई वर्कड, आई एम अ डॉक्टर, सो आई मेरा हेल्थ केयर से जरा ज्यादा है, एंड डिसेबल्ड लोगों के साथ मुझे ज्यादा एम्पैथी है. सो आई मेरी जो thesis that was about attitudes of healthcare professionals towards persons with disability. And now when I look back, तो मुझे लगता है कि I should not have had done a quantitative research. It should have been a qualitative kind of a study. लेकिन since पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इस चीज़ को promote नहीं किया जाता, probably because जो supervisors होते हैं उनको खुद भी qualitative studies करना नहीं आती हैं. तो वो जो है उसको कहते हैं कि नहीं जी, आप इसे जो उनको आता है उसी पे आपको लगा देते हैं. दो मेरा मेरा एरिया जो था ऑफ इंटरेस्ट वाज access barriers. What are the barriers that people with disability face in accessing the healthcare? So that was one area जो मुझे लगा कि being a healthcare professional probably ये attitudes की बात कहाँ से आ गई. हमें तो लगता है कि हमारा attitude बहुत अच्छा है with the people with disability, so it should have been maybe studied more thoroughly. So this thing about publication record, I'm very thankful to you that you brought it in spotlight, क्योंकि this is something which is not talked about very commonly. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर अनीला. आई थिंक आपने ठीक आइडेंटिफाई किया. और पता है आपको, जब मैं वो करियर स्टेज की बात कर रहा था ना, तो होता ये है कि जो एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है हाउ यू प्रोग्रेस इन योर करियर, जब आप पीएचडी करते हैं ना तो वो एक ब्रॉड एरिया होता है. फिर जब आप पोस्ट डॉक्टरेट करते हैं ना तो आप अपना एक एरिया स्पेसिफाई कर लेते हैं. और पोस्ट डॉक्टरेट का एक स्ट्रक्चर जो होता है वो इसी तरह का होता है कि आपका अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है जहां आपका सुपरवाइजर होता है जो उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट की एक अथॉरिटी होता है, एस्टेब्लिश्ड होता है. और आप उस पोस्ट डॉक में साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल स्पेंड करते हैं अ, उस एरिया को मजीद एक्सप्लोर करने में, पब्लिश करने में, इन अ फॉर्म ऑफ अ स्लाइटली लेस सुपरविजन. क्योंकि जो पोस्ट डॉक है वो पीएचडी नहीं होती, मतलब उससे कम रेगुलेटेड या स्ट्रक्चर्ड होती है. बट स्टिल यू आर कंसिडर्ड समवन हु इज़ अ न्यू एंट्रेंट इन द फील्ड. अब जाहिर है हमारे पाकिस्तान में पहले तो ये कि डॉक्टर्स में बहुत कम लोग क्लिनिकल पीएचडी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एचईसी और पीएमडीसी के नज़दीक क्लिनिकल पीएचडी होती ही नहीं. हमारे यहाँ क्लिनिकल फेलोशिप ही होती है. और जो सीपीएसपी करवाता है हमारा, या जैसे रॉयल कॉलेज ऑफ यूके करवाता है. लेकिन यहाँ पे साइड बाय साइड एकेडमिक डिग्रीज भी होती हैं, यहाँ पे क्लिनिकल एकेडमिक्स होते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीएचडी करना ज़रूरी नहीं होता. आ, वहाँ यहाँ पर आप कंसल्टेंट बन सकते हैं फेलोशिप के ज़रिए. आप प्रोफेसर नहीं बन सकते, या एकेडेमिया में नहीं आ सकते विद अ फेलोशिप. आई थिंक दैट्स अ फंडामेंटल काइंड ऑफ अ लूप होल इन आवर सिस्टम. हमारे यहाँ वो ट्रेन करने का तरीका ही नहीं है क्लिनिकल एकेडमिक्स का. मैंने साइकाइट्री में पीएचडी की, और आई एम श्योर कि पीएमडीसी और एचईसी के अंदर अभी ये विकेबलरी ही नहीं एग्जिस्ट करती कि साइकाइट्री में पीएचडी हो सकती है या नहीं हो सकती. और दे ओनली रिकॉग्नाइज फेलोशिप्स जो सीपीएसपी की हैं या रॉयल कॉलेज की हैं. तो आई थिंक दिस इज अबाउट मोर काइंड ऑफ अ सिस्टम लेवल इशू कि हमारे यहाँ वो एक ट्रेजेक्ट्री या ट्रैक नहीं है लोगों को ट्रेन करने का टुवर्ड्स इट. बट इफ़ यू वांट टू गो इनटू एन एरिया ऑफ रिसर्च, आप आइडेंटिफाई करें पोटेंशियल लोगों को नेशनली या इंटरनेशनली जो उस एरिया में काम करते हैं, उनके साथ काम करना शुरू करें, पब्लिश करना शुरू करें, एंड आई एम श्योर यू विल गेट मैनी अपॉर्चुनिटीज़. और ऑलवेज फील फ्री टू रीच आउट टू पीपल जिन्होंने पब्लिश किए हुए होम पेपर्स आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में इंटरनेशनली, बिकॉज पीपल रियली फील वैल्यूड जब आप उनके पेपर को साइट करके उनसे कुछ सवाल करते हैं, उनसे गाइडेंस चाहते हैं या उनसे कोलैबोरेट करना चाहते हैं. एंड समटाइम्स दैट इज़ मोर प्रोडक्टिव एंड यूजफुल देन ट्राइंग टू फाइंड समवन लोकल जिसको उतना शायद एक्सपोजर ना हो या अंडरस्टैंडिंग ना हो. So do look out of the normal kind of environment if you want to make some rapid progress in this area. And thank you for your comment. Any other comments, thoughts? I think really नहीं बात थी about publication record in India. Out myself. Sorry, Dr. Asmara, I always struggle hearing you. आप Sorry. दोबारा से जी बताएं. Can you hear me now? जी जी हाँ जी. जी. मेरा कोई point है कि like starting out, like you mentioned, academically and professionally in our careers is now. Financially, it's a bit difficult for us to publish in international. Maybe in the future you can have a session on how to build your resume and build this background.
अच्छा, ये भी बड़ा एक अहम, मैं आपको चीज़ बता दूं, लोग ना नॉर्मली डर जाते हैं इंटरनेशनल पब्लिकेशन की फ़ी देख के। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने पाकिस्तान से जब भी अपनी रिसर्च पब्लिश की है ना इंटरनेशनली, मैंने कभी किसी जर्नल को कोई पैसे नहीं दिए। और उसका एक तरीका सिंपल ये होता है कि आप उनकी देखें तो उनका ना आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस की वेवर की पॉलिसी भी होती है। और बहुत सारे जो अच्छे इंटरनेशनल, कुछ तो प्रेडेटेड जर्नल्स हैं ना जो कि पैसे कमाने के लिए ही पब्लिश करते हैं, वो लो क्वालिटी होते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं होती, और वो सिर्फ आप लोगों को झांसा दे रहे होते हैं कि इतने पैसे दे दें तो फौरन पब्लिश कर देंगे, और वो ठीक भी नहीं है। सो दैट यू शुडंट डू एट ऑल। लेकिन जो अच्छे जर्नल हैं, जैसे आपके बायोमेड सेंट्रल है या इस तरह के जो अच्छे जर्नल्स हैं, वो सारे के सारों की आर्टिकल वेविंग फी आर्टिकल प्रोसेसिंग फी वेव करने की पॉलिसी होती है। और बहुत सारे लो मिडिल इनकम कंट्रीज को वो वैसे ही अपनी फी वेव ऑफ कर देते हैं। और आप अगर, और 50% तक तो बहुत आराम से कर देते हैं। और अगर आप एक दर्द भरा उन्हें खत पे लिख दें, साथ एक कवर लेटर लिख दें एडिटर को, और बताएं कि मुझे ये रिसर्च फंडेड नहीं थी, और जो है हमारा इसके ज़रिए से हमारे पास कोई पैसे नहीं है इसको रिसोर्स को सपोर्ट करने के, तो दे आर ऑलवेज वेरी हैप्पी टू सपोर्ट यू। अगर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाता है तो वो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस वेव कर देते हैं। आई डोंट नो आज तक कि मैंने कभी भी कोई इस तरह के पैसे दिए हो। मैंने हमेशा वेव करवा लिए हैं अपनी आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस, और वो हमेशा कर देते हैं अच्छे पेपर्स पे जब वो एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो डोंट थिंक ऑफ इट एज अ बैरियर, ये हो जाता है व्हेन यू रीच देयर। Yeah, एनी अदर? जी। yes, I want to share. Um, आज का जो टॉपिक है ये बहुत सूटेबल और अच्छा टॉपिक था, और आपने बहुत इजी वे में और बहुत कंसाइज वे में बहुत इम्पोर्टेंट बातें कन्वे की हैं, तो थैंक यू सो मच। आपने प्लेयर इज ऑल माइन, आई होप। मैं ये समझता हूँ कि जो नेशंस है ना उनका जो तरक्की होती है और तनज़्ज़ुली होती है वो उनकी एकेडेमिया की बेसिस के ऊपर होती है। अगर आपका अच्छे स्ट्रॉन्ग एकेडमिक लोग होंगे तो आप रिसर्च इनोवेशन में आगे जाएंगे और आपका मुल्क आगे जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो आई थिंक दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट एरिया, एंड दैट इज़ वाई आई गॉट अप एट 5:30 AM here in the morning to do this talk. I hope कि it helps you all। और मैं लास्ट स्लाइड पे मेरा ईमेल है वो मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। और if you have any questions, thoughts that you want to reach out to me, तो feel free to write to me। मेरा ईमेल है, I hope you can see it now। सो जीमेल मेरी ज़्यादा एक्सेसिबल है, ये हमारी GHD STMU की वेबसाइट है। और if you have any questions, any follow-up comments, thoughts, so please do write to me and I'll be happy to respond। Over to you, Dr. Vakas। Is Dr. Vakas around? STMU ORIC से कोई भी है? Okay, great। If there are no further questions, I think we can uh, call this session off। Thank you so much for your participation, and I look forward to staying in touch if you have any questions। Thank you so much। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz।